Hello students, कैसे हैं आप सभी? I hope you all are good. Okay, so let's start our new chapter. Chapter 11, data handling. Okay, so let's start. Okay, देखो. First of all बच्चों lesson plan. हम इसमें पढ़ने वाले statics, important terms, mean of row, ungrouped data, median, then mode, then bar graphs, reading a bar graph and drawing double bar graph. Okay, ये topics हम cover करेंगे. First आते हैं बच्चों देखिए statistics. Okay. Data handling is a part of statistics and this is the part of the mathematics. Okay, so the collection, organization and interpretation of information come under a separate branch of mathematics called statistics. Okay, क्या करना है इसमें बच्चों, बहुत सारे डेटा हमें दिया जाएगा जिसको हम ग्रुपिंग करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो ये सारी चीजें आती है हमारी इस टॉपिक में. ओके, सपोज यू आर interested in knowing the heights of the children of a school having around 1000 students. Okay, so for this the height of each student is to be noted. Okay, so now we have prepared a list of 1000 students with their heights. तो क्या किया बच्चों हमने, लेट सपोज कि 1000 स्टूडेंट्स है तो हमें उनकी हाइट्स का एक डेटा बच्चों प्रिपेयर करना पड़ेगा ना कि कितनी कितनी हाइट्स की हैं. Okay, then we will not be able to make out anything out of the long list in our hands. So we need to organize the data and calculate the relevant information. समझ आया? ठीक है, क्योंकि इतनी सारी information है बच्चों हम फिंगर से कैलकुलेट तो नहीं कर सकते. That's why we need to organize it. Okay, so lastly we need to interpret our results in a proper way. The information should be presented in such a manner that it is understood by all. Right? देखो, so important terms हैं बच्चों इसमें. Now we must understand a few terms before we start our study of handling of data. Okay. First, data. Data क्या होता है? The information that is collected in relevance to a particular field in the form of numerical figures is called data. Okay. तो जो भी information होगी जो हम उसको numbers की form में बच्चों represent करेंगे, that is our data. Now raw data क्या होता है? Data obtained from the source is called raw data. Okay, it is in original form without being tampered with. Okay, then observation क्या होता है? Each numerical figure of entry in the data is called observation. Okay, let us consider for example the marks 15, 16. बच्चों देख रहे हैं कितने सारे ये marks हैं, है ना? So obtained by 10 students in a test out of 20. The above numerical figures are related to the marks obtained by 10 students. This is raw data. So here each entry is an observation. Okay, चलिए अब आते हैं array. The first thing we can do to this data is to arrange either in ascending or in descending order. This is known as array. समझ आओ, जो कोई भी डेटा आपको दिया जाएगा raw data उसको हम ascending या descending में अरेंज करेंगे, इसको हम array बोलते हैं. ठीक है, so thus we arrange the above data as follow. देखिए बच्चों इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया. सो दिस इज एरे. ओके, फ्रीक्वेंसी देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, ऑफ द ऑब्जर्वेशन. दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 इन द अबव डेटा इज 2, क्योंकि 15 कितने टाइम आया? 2 टाइम आया. ठीक है, नाउ रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इन द गिवन set of data is called range of data. Hence the range of the above data is 19 minus 2 because 19 बच्चों सबसे highest digit है और 2 इसमें lowest है, so that's why ये हो जाएगा 17. Okay, tabulation देखो क्या होगा. Tabulation है representing data in the form of a table with the frequency of the observation is called tabulation of the data. Okay, now frequency distribution table. The table so formed consisting of arranged data frequency of each entry is called frequency distribution table. इसको बच्चों हम एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, द डेटा गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ सिक्सेस युवराज सिंह स्कोर्ड इन हिज लास्ट 20 ODI. ओके, रिप्रेजेंट द डेटा इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल. बच्चों यहाँ पर हमें ये सारा डेटा दिया हुआ है कि उसने कितने सिक्सेस यहाँ पे मारे हैं. ठीक है, सॉल्यूशन है, लेट अस फाइंड अरेंज द डेटा. तो बच्चों फर्स्ट इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये है एरे. असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया. Here we all say, here we shall use tally marks for counting the observation. We keep putting one vertical lines for each entry. ठीक है, हर किसी के लिए हमें एक vertical line चाहिए. So after 4 entries of a particular observation, cross bar is put in indicating group of 5. Okay, तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं number of sixes देख रहे हैं. पहले 2 कितनी टाइम्स है ये देखो. So number of frequency बच्चों, number of innings frequency ये है 5. ठीक है, तो 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख रहे हैं.
5 में बच्चों पहले 4 स्टिक्स आएंगी, ओके, वर्टिकल, एंड देन 1 कैसे आएगी इसमें, ये डायगनली आएगी, ओके। सो ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। अब 3 6 कितने हैं, ये बच्चों 4 टाइम्स है, तो इसमें 4 स्टिक्स है, टेली मार्क्स, ओके। इसमें 4 बच्चों, ये भी 4 है, ये 5 के लिए 3 है, ये 6 और 7 और ये 8, ओके। तो ये बच्चों टोटल दिया है 20 के लिए। आप समझ आए कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वी मस्ट चेक दैट द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ डेटा, जो कि 20 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सेम बच्चों यही है, जो भी आपको डेटा दिया जाएगा पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपको प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल, तो बस यही प्रिपेयर करना। नंबर ऑफ नोटबुक्स बच्चों, बुक्स यहाँ पे, टेलीमक्स यहाँ पे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मींस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। चलिए एक्सरसाइज 11.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल फिगर और एंट्री इन द डेटा इज कॉल्ड डेटा, ओके, इसको हम डेटा बोलते हैं। सेकंड, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ओके। अदर पार्ट्स आप ट्राई करेंगे। सेकंड है, द फॉलोइंग डेटा शोज द वेट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन केजी ऑफ क्लास 7। ये है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अबव डेटा, तो ये हमें एक टेबल प्रिपेयर करना है, ओके। चलिए इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों मैं छोटा ही आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले सेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सबसे छोटा इसमें देख पा रहे हैं बच्चों, ये 20 है, यहाँ पे ये 20, काउंट करते कितने 20 है, 1 2 3 4, ओके। सो ये 20 हो गए 4 टाइम्स। देन 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 24 24, ये रहा 24 24 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम 24 और ये 24 लिखेंगे, ठीक है। 25, ये रहा 25 25 25 3 बार, ठीक है, ये है 25 25 25 और ये 25। इसके बाद 26 नहीं है, 27 है, ये 27 27 27, ओके, 3 टाइम्स। 28, ये 1 2, ओके, ओनली ये 3 टाइम्स। 28 28 28, ठीक है। 29 नहीं है, 30 30 नहीं है, 31 32 32 है, 32, ये 3 टाइम्स, ओके। यहाँ पे 32 32 32, ठीक है। 33 नहीं है, 34 है, ये रहा 34, ओके। सो 34 बच्चों, ये 34 2 टाइम्स है, ठीक है, ओके। तो ये है, अब इसको टेबल रिप्रेजेंट करते हैं टेबल में, तो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमें दिया है वेट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेट, ठीक है। ये टेली मार्क आ जाएगा इसमें, टेली मार्क, और इसमें आएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी, ओके। अच्छा, वेट के अकॉर्डिंग लेट करते हैं। यहाँ पर पहले बच्चों ये 20 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 4 टाइम्स है, लिखेंगे 4 फ्रीक्वेंसी, और ये टेली मार्क बनाएंगे इसमें 1 2 3 4, ठीक है। अब आते हैं 24, तो ये 24 बच्चों कितनी टाइम है, 1 2, तो ये 2 टाइम है, यहाँ पे 2 टेली मार्क। फिर 25 है, 1 2 3 3 टाइम्स है, ये 3 1 2 3, ठीक है। 25 हो गया, 26 नहीं 27 है, तो यहाँ पे 27 कितनी टाइम है, 3 टाइम, ये 3 1 2 3, ठीक है। 27 28, ये भी 3 टाइम है, 3 टाइम हो गया। 32 है, इसके बाद 32 है बच्चों 3 टाइम, है ना, ये 3 टाइम है, 1 2 3, और इसके बाद 34 है, 34 है, ये भी 3 टाइम है, ठीक है, 3 टाइम है, 3 टाइम नहीं बच्चों, ये 2 टाइम, ये मैंने 2 बना दिया, ठीक है, ये 1 और 2, ठीक है। इसमें टोटल भी लिख सकते हैं, तो ये 4 2 6 6 और ये 9 9 और ये 12 15 15 और ये 18 18 और 20, ठीक है। तो ये रहे 20, क्लियर है। आप देख सकते हैं इसमें 20 स्टूडेंट्स थे, तो टोटल फ्रिक्वेंसी आ रही है 20, ओके। और यही है आपकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लियर। ऐसे ही बच्चों ये इसमें आपको 3rd and 4th में ड्रॉ करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों, मीन ऑफ रॉ ungrouped data, okay. The mean of the ungrouped or raw data is found by adding all the entries of the data and dividing their sum
बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो इसमें हमें सारी जो भी ऑब्जर्वेशन उनका सम करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म से, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो द मीन इज डिनोटेड बाय एक्स। ओके, एक्स के ऊपर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, बार है ना। सो रीड एज एक्स बार। ओके, द मीन इज ऑल्सो रेफर टू एज अर्थमेटिक मीन, इसको हम एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं इसका फॉर्मूला है, ये मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, एग्जांपल 3 है, द फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट। ओके, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन है। नाउ फाइंड द मीन मार्क ऑफ द स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो देख रहे हैं ये सबको हमने सम किया बच्चों, 38 आ गया डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 10, ठीक है, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 3.8। दिस इज योर मीन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन भी बच्चों सेम है, यहाँ पर इन सारी ऑब्जर्वेशन का आपको क्या करना है, मीन निकालना है। नोट दिया गया है, while taking the total number of observation, the observation O must be not, okay, this is 0, okay, so observation 0 must not be left, even if it does not make any contribution to the same, it is included in the number of observation and hence influences the mean। okay, तो इसमें आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 0 भी काउंट करेंगे, हाँ ये ऐड नहीं होगा क्योंकि 0 मतलब नथिंग। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप काउंट करेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, मीन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देयर फ्रीक्वेंसीज एज फॉलो। ऑब्जर्वेशन है बच्चों x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन xn तक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 f4 एंड देन fn तक। ओके, सो द मीन ऑफ द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ये देख सकते हैं मीन कैसे निकालेंगे, x1 इंटू f2 x1 इंटू f1, ठीक है, ऑब्जर्वेशन इंटू फ्रीक्वेंसी करेंगे, देन प्लस में x2 इंटू f2, इस तरीके से नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है। इसको हम ये देख रहे हैं, ये जो सिंबल है इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। सो सिग्मा इज द सिंबल ऑफ समेशन। जब भी आप ऊपर लिखते हैं बच्चों सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समेशन ऑफ दिस सिग्मा, समेशन ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ये निकालेंगे यहाँ पे, दिस इज क्या है, is the sum of the product of the variable and the corresponding frequency, ठीक है। So this is the sum of the frequency. We would like to elaborate upon fx here. Fx is actually the sum of all the observation, since we multiply the observation by their frequency and take their summation, hence it gives us the sum of all observation। okay, तो हमें सिंपल बच्चों सम देगा सारी ऑब्जर्वेशन का। एग्जाम्पल 6 है, the following frequency distribution table shows the height of the 20 trees। okay, तो ये हाइट है बच्चों 50 mm, ठीक है, ये मीटर में सॉरी 50 मीटर है, नंबर ऑफ ट्रीज 2 है। तो ये जो आप ऊपर देख पा रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन है, ये x है, और नीचे जो देख रहे हैं नंबर ऑफ ट्रीज, इसका मतलब ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये x1 है, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4 एंड दिस इज x5, ठीक है। ये है बच्चों आपकी f1 f2 f3 f4 एंड f5, क्लियर। अब हमें इसका मीन निकालना है। ओके, हाइट ये सारी है बच्चों, ये नंबर ऑफ ट्रीज है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो f यहाँ पर आ जाएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों यहाँ पे, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो 20 है। इसके बाद f इंटू एक्स हमें निकालना है, तो सिंपल जो हम यहाँ लिखा है 50 इंटू 2 इज 100, देन 52 इंटू 4 इज 208, देन 54 इंटू 7 इज 378, इस तरीके से सारा लिख लेंगे बच्चों। और एफ एक्स का सम कितना आ रहा है 1082, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूले में पुट करना है, तो ऊपर आ जाएगा इस तरीके से ये 1082 डिवाइडेड बाय 20, और ये जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 54.10। ओके, हेंस द मीन हाइट ऑफ द ट्रीज इज 54.10 मीटर, ठीक है। ये एग्जांपल 7 है, इसे आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। ओके, जब भी बच्चों ऐसा कुछ आ जाए जिसमें वेरिएबल्स भी हो, ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले तो ये देख सकते हैं 5 इंटू 5 25 हो गया, यहाँ पर तो ठीक है, ये 35 इंटू पी इज 35p, ठीक है, बाकी सारा ये। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसमें देखो नीचे ऐड में क्या आएगा समीशन, ये 44 प्लस p आ रहा है, ठीक है, क्योंकि p भी है यहाँ पे है ना वेरिएबल में, तो ये सारा। इसके बाद एफ एक्स का जब हम सम करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। वापस हमें नॉर्मल फॉर्मूले में पुट करना और सॉल्व करना, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, चलिए करते हैं 11.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है बच्चों, मीन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। मीन इज द व्हाट, सेंट्रल वैल्यू, यस, ओके। सेकंड इज मीन वैल्यू ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज देयर एवरेज वैल्यू। तो
एक साइन बच्चों यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू नहीं होती है, ओके, इसको हम लिखेंगे नो, और इसमें मतलब ये फॉल्स है। मीन वैल्यू ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज द एवरेज वैल्यू, यस, ये बच्चों ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है, ये फॉल्स है और ये है ट्रू, ठीक है। सेकेंड देखो, फाइंड द मीन ऑफ दिस, ओके, तो कर लेते हैं यहाँ पे पहले 2 + 3 + 5 + 7 + में 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, ओके, तो कितना हो जाएगा 5 5 ये 10 10 और ये 19 19 20 26, ठीक है, 26/5, इसको और कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 = 25 5 2 = 10, तो ये है 5.2 इज योर आंसर, ठीक है। एक और इसका कर लेते हैं, इसमें ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग, ओके, देखो बच्चों यहाँ जो फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनानी है तो आप खुद ही बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद मीन भी कैलकुलेट करना है तो ये भी खुद से करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं ये वाला देखो, तो इसमें हमें बोला है मीन निकालने के लिए, सबसे पहले देखो -3 प्लस करेंगे -2 प्लस करेंगे -10 प्लस करेंगे 0 देन प्लस करेंगे -1, सॉरी यहाँ पे -1 है, ये प्लस 0 है, फिर प्लस करेंगे -1 देन प्लस करेंगे 2 देन प्लस करेंगे 3, ओके, देन डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे होगा 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, तो माइनस, ये देखो पहले इसके साइन को लिख लेते हैं, ठीक है, ये क्या बनेगा माइनस, यहाँ देखो ये आ जाएगा -3 -2, फिर ये -10 प्लस का ये 0 देन -1 प्लस में 2 प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -5, फिर -5 -10 -15 -15 -16, यहाँ पे आएगा -16 और ये फिर प्लस का 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 11, है ना, माइनस के 11, तो ये आ रहा है आपका इसमें -11/7, क्लियर। इसको और पॉइंट में निकाल सकते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 11 7 1 7, फिर कितना बचा पे 4 7 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो ये नेगेटिव में बच्चों इतना कुछ आपका आंसर आएगा, ओके, अप्रॉक्स लिखा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, ये देखो सेवेंथ है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 20, मीन दिया हुआ है, इफ 4 ऑब्जर्वेशन आर दिस, ओके, देन फाइंड द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ओके, तो कर लेते हैं इसमें, देखो तो मीन ऑब्जर्वेशन बच्चों यहाँ पे मतलब मीन दिया है, ये यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, मीन इज इक्वल्स टू 20 और इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखो ये सारे ऑब्जर्वेशन तो इसको सम करेंगे 30 + 40 प्लस में 15 प्लस में 5 और एक टर्म को हम x लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता, एंड डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इन सभी को पहले ऐड कर देते हैं और 5 को वहां ले जाते हैं, तो 5 4 से कितना 5 25 से कितना हो जाएगा ये 100 इज इक्वल्स टू 30 एंड 40 ये 70 और ये कितना हो गया यहाँ पे 20, तो ये हो गया 90, ठीक है, 90 प्लस में x, देन x आ जाएगा आपका 100 माइनस 90, इसका मतलब 10, क्लियर है, x की वैल्यू आ गई है बच्चों 10, ओके। ये देखिए 10th क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स, ओके, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स मतलब पहले 2 आएगा प्लस में फिर 4 आएगा प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 10, ओके, देन इसका मीन निकालना है तो डिवाइडेड बाय करेंगे 5, ओके, सम करते हैं, ये होगा 18, देखो यहाँ पे ये कितना हो गया 30 होगा क्योंकि 10 ये है 10 20 और ये 30, सो 30/5 5 ये 5 6 30, सो योर मीन इज 6, क्लियर। आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें, ओके, तो अब इसको बच्चों हम ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टडी आवर्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, ओके, सो ये नंबर ऑफ आवर्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, फाइंड द मीन स्टडी टाइम, ओके, आइए करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें हम एक टेबल बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे 12 है ये, ओके, तो यहाँ पर बच्चों हमारी टर्म्स आते हैं नंबर ऑफ आवर्स, इसको ये x वाली टर्म है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी में क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड देन यहाँ पे ये आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स,
ये x वैल्यू है, ये f वैल्यू है, और इस दोनों में हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। देखो तो f वाली वैल्यू कितनी यहाँ पे बच्चों, ये 5 है, ये 5 है यहाँ पे, ठीक है, फिर 7 है, 9, 11 और 13, ठीक है, 5 डिजिट्स है। फ्रीक्वेंसी में देखा जाए ये 3 है, ये 7 है, ये 6, ये 2 और ये 2, ठीक है। अब f इंटू एक्स करते हैं, 5 3 जा 15, 10 7 7 49, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 26, ठीक है। इसके बाद हम इनका सम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो ये आ जाएगा एफ एक्स समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 6, देखो 5 9 14 14 और ये 18 18 20 26, ठीक है, 6 यहाँ पे 2 एज अ पावर 2 3 3 और ये 7 7 5 हो गया 12 12 और ये 14 16 17, ठीक है। सो 176 योर समेशन आ रहा है, ठीक है। अब इसका हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मीन इज इक्वल्स टू यहाँ का ये होगा समेशन ऑफ एफ और एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो ये कितना है यहाँ पे, अभी हमने निकाला 176 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पे 5 है, तो ये आ जाएगा 5। एक बार हम इसका सम ये क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 5 7 ये 9 ये 11 13, ठीक है, ये 3 7 6 2 और 2 है, ठीक है, 5 3 15 7 7 49, ये हो जाएगा 54 22 और 26, ठीक है, 5 9 14 14 और ये हो जाएगा यहाँ पे 18 18 20 26 6 2 पावर 2 3 3 7 7 12 12 और ये 14 और ये 14 और 16, बच्चों सॉरी ये 16 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 166 है अभी, ठीक है, ये 5 से करेंगे इसको, ठीक है, तो इसका डेसिमल में कोई आंसर आ जाएगा 5 3 15 5 3 15 पॉइंट में आ जाएगा 5 2, ठीक है, तो ये 33.2 आपका मीन आ रहा है, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही हमें ये टेबल को कंप्लीट करना है, ओके। चलिए अब ये बाकी सारी टेबल बच्चों आप एक बार इसमें खुद से ड्रॉ करेंगे, ओके। नेक्स्ट है 15th वाला भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ओके, तो इसमें कर लेते हैं। अब मैं बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली निकाल देती हूँ, ठीक है, ये f है, ये x और f है, तो अगर हम यहाँ मैं यहाँ पे निकल देती हूँ, ठीक है, f और x, तो कितना हो जाएगा 4 2 8, ये 4 4 16 आएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 और p प्लस 5, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। इसको और ओपन करेंगे तो ये 2p और प्लस में 10 आएगा, ठीक है। अब हमें सिंपल इनको सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे 15 है, सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो इन सभी को पहले ऐड कर लेते हैं, 5 8 सॉरी यहाँ पे ऐड करते हैं, देखो 2p तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो ये देखो 30 ये 10 40 ये कितना हो गया 82 82, ठीक है, 82 और ये 90 90 और ये 100 100 और 100 कितना हो गया 106, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 106 एंड डिवाइडेड बाय इसको सम करते हैं बच्चों 2 + 4 फ्रिक्वेंसी का करना है ना, तो यहाँ पर ये किया, देखो ये हो जाएगा 8, ये देखिए ये 10 हो गया और ये 10, ठीक है, तो ये 20 नीचे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 20। अब मीन हमें दिया हुआ है, इसमें मीन है 6, ठीक है, तो 6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 2 + 106 डिवाइडेड बाय 20, इस 20 को यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 120 120 इक्वल्स टू ये 2p प्लस में 106, इसको यहाँ लाके माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये 2p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 120 में से माइनस 106, ठीक है, 2p इक्वल्स टू ये माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों यहाँ पे 14, ठीक है, देन p की वैल्यू आ गई बच्चों 14 डिवाइड बाय 2 मतलब 7, क्लियर हो गया, ठीक है, 7 इज इक्वल्स टू p। तो ऐसे हम इसे बिना, देखो हमने यहाँ पे टेबल भी नहीं बनाई पर फिर भी हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर लिया, पर लेकिन आप इसको प्रॉपर टेबल से बनाकर करेंगे, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है। The middlemost value among the data when it is changed in order ascending or descending is called the median of the data। मतलब आप पहले नंबर्स को ascending या descending किसी में भी अरेंज करेंगे, उसके बाद जो मिडिल टर्म होगी that is your median, okay।
hence to find the median of an ungrouped data, we first arrange the given data in ascending or descending order. Then we find the middle value from the data. Okay, when the data is large, it becomes difficult to locate the middle value. Hence we follow the following rules in general after arranging the data. Okay, तो इसमें बच्चों आप देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारा डेटा होगा तो उसको हम अरेंज करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम इसको एक फॉर्मूले थ्रू करेंगे. ठीक है, फर्स्ट है कि व्हेन n इज ऑड, मतलब नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है अगर ये ऑड होती है, ठीक है, तो हमें इसमें हमारा फॉर्मूला आएगा मीडियन का n+1 डिवाइडेड बाय 2 फिर टर्म. ठीक है, मतलब जो n+1 डिवाइड बाय 2 टर्म आएगी वही होगा आपका मीडियन. और अगर क्या होगा व्हेन n इज इवन, ठीक है, अगर ये इवन है तो इसमें हम n/2 तो ऑब्जर्वेशन प्लस में n/2 प्लस 1 तो ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो होगा मीडियन. चलिए इसमें कर लेते हैं एग्जांपल 8. फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. देखो अभी कितनी टर्म्स है पहले गिन लो. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑड है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों इसमें n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन लगानी है. n कितनी यहाँ पे बच्चों 9 है, सो n इज 9, 9+1 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 5. ओके, कट करके क्या आएगा 5 बच्चों, इसका मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. तो फिफ्थ आप काउंट कर लो, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, उसके बाद फिफ्थ टर्म. तो ये काउंट करेंगे जो सेंटर वाली टर्म आ रही है 7. ओके, सो 7 इज योर मीडियन. ओके, अभी देखो इसमें अभी हमें बच्चों मीडियन निकालना है, पर कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसमें बच्चों इवन है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला. ठीक है, तो ये n प्लस ना n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 मतलब 10/2, तो ये 5 आ जाएगा. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये रही, प्लस में 10/2 मतलब 10/2 प्लस 1 मतलब 11th ऑब्जर्वेशन होगी ना, 11th में सॉरी 6th ऑब्जर्वेशन है ना. तो ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें काउंट करो, ये देखो यहाँ से ये रही फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 25 और 6 आ जाएगी 30. ओके, सो 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज 55/2, ये आ जाएगी 27.5 इज योर आंसर. ओके, सो दिस इज योर मीन. क्लियर है, बस आपको एक फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी आप कर लेंगे. ठीक है, ऐसे ही ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ये आप करेंगे. ओके, चलिए एक्सरसाइज करते हैं 11.2. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मीडियन. देखो मीडियन से अभी हमने डेफिनेशन देखी थी कि मिडिल टर्म है ना, कि डेटा को पहले हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में अरेंज करें, देन द मिडिल टर्म इज अ मीडियन. ओके, सेकंड क्वेश्चन फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा ऑड. अब ये ऑड है इसमें, ठीक है, तो सिंपल हमें बचा इसमें n+1 वाला फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, तो नंबर ऑफ कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 ये कर रहे हैं. ठीक है, सो 7 + 1 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब इसमें आ जाएगा कितना 8/2, तो ये आ जाएगा 4, मतलब फोर्थ टर्म आपको चाहिए. तो फोर्थ टर्म कौन सी है बच्चों, अरेंज करते हैं पहले इसको असेंडिंग. ये देखो पहले इसको असेंडिंग में अरेंज करते थे, पहले आ जाएगा 35, इसके बाद 40 ही है, देन 45 ही है, 45 के बाद 50 है, देन 55 है, देन 60 है, देन 65 है. कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7. ओके, अब इसमें जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म मीन्स 50, सो 50 इज योर मेन. क्लियर हो गया, 50 इज योर मेन नहीं सॉरी मीडियन है. ठीक है, समझ गए. अब ऐसे इवन वाले में भी करना है, तो ये वाला देखो इसमें पहले n/2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8/2 बच्चों कितने आएगी फोर्थ टर्म, फिर n+1 ये n/2 प्लस 1th टर्म. ओके, ये डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो ये 8/2 मतलब फोर्थ टर्म प्लस में फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2. अब देखो फोर्थ टर्म पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज तो करना पड़ेगा. ठीक है ना, अरेंज कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ. ठीक है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, 2 3 4 5 6 7 8 10. ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10 है. ठीक है, तो ये कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, अब इसमें देखो फोर्थ टर्म कौन सी है 5 है, तो ये 5 प्लस में फिफ्थ टर्म कौन सी 6 है, दिस डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 11 11/2, मतलब 5.5 आपका आंसर आ रहा है. क्लियर हो गया, 5.5 आपका मीडियन है. ठीक है, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है. देखो फिफ्थ क्वेश्चन बोला कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, कर लेते हैं इसमें. देखो अभी कितनी टर्म्स है, मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये कितनी है बच्चों 10 है. ठीक है, 2 3 7 बच्चों ये असेंडिंग में पहले से ही अरेंज है, तो हमें अरेंज नहीं करना है ना. अब ये इसमें इवन टर्म्स है, तो पहले आ जाएगा बच्चों n/2 टर्म,
ठीक है, फिर प्लस में n प्लस ये n/2 प्लस 1th टर्म, ओके, डिवाइडेड बाय 2। तो ये 10 टर्म्स है, मतलब 10/2, ठीक है, तो ये 10/2 5th टर्म आएगी, और यहाँ पे 11th कितना आ जाएगा, ये 10/2 प्लस 1th टर्म, ओके, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो इसको कट किया बच्चों, ये 5th टर्म आ रही है यहाँ पे, 5th टर्म प्लस में आ जाएगी 6th टर्म डिवाइड बाय 2। अच्छा देखो 5th टर्म कौन सी है इसमें, तो 1 2 3 4 5, ये बच्चों इसमें है 5th x है। अब मैं इसको यहाँ कर रही हूँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर इसका 5th है। पहले हमें मीडियन इसमें दिया हुआ है 14, ओके, 14 इज इक्वल्स टू 5th टर्म इज x एंड 6th टर्म इज x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 28 इज इक्वल्स टू ये 2x और प्लस में 2, ठीक है, इस 2 को यहाँ माइनस कर देते हैं, 28 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x, देन यहाँ आ जाएगा 26 और ये डिवाइड में आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू दिस। इसको कट किया बच्चों, ये आ रहा है आपका 13, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों आपका इसका x की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है, हमें इससे वैल्यू निकालनी थी तो बस 13 आ गई, कर लेंगे ऐसे ही, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हुए, इसे हटा रही हूँ, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आता है मोड, देखो ये और भी इजी है, कैसे, मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हिच अकर्स मोस्ट कॉन्सिक्वेंटली, मतलब जिसके नंबर ऑफ अकरेंस जो है बच्चों ज्यादा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वही मोड है, ठीक है। द मोड ऑफ द डेटा कैन बी फाउंड आउट जस्ट बाय इंस्पेक्शन, द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्ड the maximum number of times is the mode. Here is it should be noted that if all the observation occur only once, then the data is said to be have no mode. Okay, अगर सिर्फ सिर्फ वो एक ही बार आती है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें कि देखो noted that if all the observation occurs only once, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन है सारी की सारी अगर वो सिर्फ एक बार ही आती है तब उसका कोई भी बच्चा यहाँ पे मोड नहीं होगा, ठीक है। If two observation occurs equal number of times, then both of them are taken as mode. Okay, तो अगर दोनों मतलब दो टर्म से कोई भी जो कि सेम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उनकी, तो उसमें दोनों ही मोड हो जाएंगे, ठीक है। देखो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल, बच्चों पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे, तो ये अरेंज कर लिया, इसके बाद देखो कौन सा ज्यादा है, तो 2 कितने टाइम्स है बच्चों, 3 टाइम्स है, बाकी सब देख रहे हैं कोई 2 टाइम्स है कोई 1 टाइम है, ओके, तो सबसे ज्यादा टाइम किसका है, 2 है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 की ज्यादा है, तो इसका मतलब मोड हो गया 2, क्लियर है। ऐसे ही फाइंड द मॉडल क्लास मॉडल मार्क आउट ऑफ 10 ऑफ 15 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बच्चों कितने हैं, पहले तो इसको देखो अरेंज कर लिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में, ये ठीक है। इसके बाद we observe that observation 3 and 5 have the maximum number of frequency that is 3 each, okay, तो देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा है 3 and 5, देखो ये 3 जो है ये भी 3 टाइम है और 5 है, नहीं 5 तो 2 टाइम है, नहीं 5 बच्चों 3 टाइम है, ठीक है ना, तो इसमें दोनों ही मोड हो जाएंगे 3 and 5, क्लियर है बच्चों, तो ये कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ये क्या है, फाइंड द मॉडल हाइट ऑफ द 20 स्टूडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, ये दिया है हाइट, ये दिया बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है। So the observation, okay, we observed that the maximum frequency is 6, इसमें देख रहे हैं सीधे सीधे बता दिया बच्चों, सो मॉडल हाइट इज 152, ठीक है। चलिए 11.4 एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मोड्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखो जैसे कि ये वाला करते हैं, इसमें अरेंज करते हैं पहले, 2 ये है, 1 ये 2 3 4 5, ओके, 5 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, ठीक है। फिर 3 की टाइम है 1 2 3 4 5, ये भी बच्चों 5 टाइम ही है, सॉरी ये 3 है यहाँ पे, ठीक है, ये 3 है, तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों ही 5 टाइम आ रहे हैं, तो इस बच्चों के दोनों मोड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मोड देखा जाए इसका, ये होगा 2 and 3, क्लियर। आगे आते हैं, ये देखो इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 3 and 5 फाइंड p, ओके, ठीक है। अब इसमें देखो मोड आपको दिया है p, इसमें 1 2, तो यहाँ पे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज भी कर सकते हैं और नहीं भी, आप देखो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, तो इसमें बच्चों आप देख पा रहे हैं कि 3 जो है वो 2 टाइम्स है, बाकी सब इसमें देखो, अच्छा 4 भी है, 4 भी है, तो इसमें बच्चों p की जो वैल्यू है वो 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, ठीक है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, क्योंकि हमें इसमें, अच्छा इसमें दिया बच्चों मोड तो हमें 3 दिया ही है ना, तो फिर इसकी p की वैल्यू बच्चों 3 ही है, क्लियर है, क्योंकि हमें उसी को नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए, इसलिए p की वैल्यू होगी बच्चों 3, ठीक है। अब यहाँ से तो देखो सीधे सीधे इसमें क्वेश्चन है कि जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो जो आप देख रहे हैं इसमें 9 है, तो हाइट किसकी हो गई, ये 60, ठीक है, ये हो गई मीन। अब आते हैं बार ग्राफ, देखो a pictorial representation of numerical data in the form of number
of rectangular bars of equal width but varying length according to the numbers they represent is called bar graph. ठीक है, for example we all see cricket matches on television, right? बच्चों हम देखते हैं, है ना? So the picture shows the runs scored per over during the first 8 over of any innings. So here we observe that runs are marked on the vertical axis and over are marked on the horizontal axis. Okay, the number of runs scored in a particular over are represented by rectangular bars of equal with keeping the equal distance. Okay, देखो बच्चों यहाँ पे पिक्चर देखते हैं इसकी, ये है प्रॉपर, इसमें बार ग्राफ हमने शो किया, ठीक है? देखो इसमें दो एक्सेस होती है बच्चों, ये है वर्टिकल एक्स बच्चों वाई एक्सेस और ये जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज एक्स एक्सेस. ओके, हमने दोनों ही एक्सेस पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है. तो एक्स एक्सेस पर आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, ओवर्स है, और वाई एक्सेस पर है बच्चों रन्स पर ओवर. ठीक है, तो ये डेटा है. आप देख सकते हैं कि इसमें हमने बार सी देखिए, सबकी लेंथ अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, बट इनकी जो विड्थ है और जो विड्थ के बीच का जो गैप है वो इक्वल है. ठीक है, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने के, इनकी जो विड्थ है इक्वल होनी चाहिए और जो गैप है बच्चों वो भी प्रॉपर होना चाहिए. ठीक है बच्चों, इक्वल ही होना चाहिए, बट इनकी लेंथ वेरी करती है अकॉर्डिंग टू आवर गिवन डेटा. ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो. To construct a bar graph, we follow the steps given below. बच्चों स्टेप नंबर 1 है, on a graph paper draw a horizontal line x axis and vertical line y axis. ठीक है, सबसे पहले वो ड्रॉ करनी है. Then along the horizontal axis mark point at equal distances and write the names of the x word variate like subject, month, days, etc. जो भी आप इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं. Along the vertical axis mark point at equal distance by choosing a suitable scale according to the data. Okay, then step 3 है draw bars. rectangular बच्चों बनाने of equal width. The height of the bars varies according to the frequency. Okay, जिसकी ज्यादा frequency बार उसका ऊपर बनेगा. So let us now illustrate the above points by the following example. Example 15 है बच्चों, यहाँ पे the number of students in hostels of a school are as follows. ये बच्चों हॉस्टल है यहाँ पे, ठीक है. रिप्रेजेंटेशन represent the data अब represent the data in a bar graph. Okay, देखो यहाँ पे, तो ये बच्चों आप देख सकते हैं ये हॉस्टल्स है यहाँ पे, और ये क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो सारे के सारे हॉस्टल्स इनके नेम हमने लिख दिए, और यहाँ पे क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये है. ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें पहले कि ये नेहरू वाले में कितने 75 है, तो हमने ये वाला बार बनाया बच्चों कहाँ पे 75 तक. ठीक है, फिर आप देख रहे हैं टैगोर वाला, तो देखो टैगोर 60 है, तो ये हमने 60 तक इसका बार बनाया. फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट तिलक 80 तक है. ठीक है, तो ये 80 तक इसका बना हुआ है. फिर ये वाला देखो पंत का कहाँ तक है 90 तक है, और ये लास्ट गांधी जो है ये बच्चों 65 तक है. ओके, तो आपको डेटा देखकर इनकी लेंथ बनानी है. क्लियर हो गया, तो ये इजी है. ठीक है, बस डेटा को आपको ध्यान से बनाना है. अब ये वाला बच्चों ये आप खुद से करेंगे. ठीक है, ये देखो एक और इसमें दिया हुआ है, ये है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये. ठीक है, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सिंपल, एक्स एक्सेस पर बच्चों यहाँ पे क्या आएगा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वाई एक्सेस पे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बस यहाँ पे देखो ऑन फुट, फुट से देखो मतलब नॉर्मल विदाउट एनी व्हीकल कैसे कितने जाते हैं बच्चों, ये है यहाँ पे दिए हुए 3. ठीक है, तो ये 3 तक हमने इसको बना दिया. इसके बाद साइकिल से बच्चों कितने हैं, ये 10 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, तो 10 तक बना दिया. स्कूल बस देख रहे हैं 12 है, तो ये 12 है. फिर बाइक बच्चों 3 हो जाएगा, कार कितने हैं 5. ठीक है, इनके बेसिस पे बच्चों अगर हमसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो हम कर सकते हैं. ठीक है, आगे आते हैं रीडिंग अ बार ग्राफ. देखिए, सो वी कैन आल्सो get information from bar graphs. So as we look at the bar graph, we should first find what is given in the bar graph. Okay, so let us read the bar graphs to understand the concept. ये दिया है, read the following bar graph showing the number of TV sets sold from a shop during 6 days of a week, and study the graph carefully and answer the question that follow. Okay, first question है what is the total sale of the shop during the week. Okay, तो बच्चों यहाँ पे total sale यहाँ पे पूछा. ठीक है, तो अच्छा इसमें कुछ और तो दिया नहीं है. ओके बच्चों, ये जो है इसमें ग्राफ नहीं, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें हमें ग्राफ नहीं दिया है. ठीक है, ये देख रहे हैं ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये अभी हमने ऊपर भी देखा था. देखो ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, पर इसकी इन्फॉर्मेशन बच्चों आधी है. ओके, ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसमें ये रीडिंग अ बार ग्राफ सेम, ये पेज बच्चों रिपीट हो रहा है यहाँ पे. इसमें क्वेश्चन में इनकम्प्लीट दिया हुआ है, या तो इसमें डबल डबल पेजेस दे दिए इन्होंने. ठीक है, चलिए आइए मैं आपको सीधे एक्सरसाइज से दिखाती हूँ. ठीक है, एक्सरसाइज 11.5 आइए करते हैं.
क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, ड्रॉ बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। ओके, तो सीधे हम यहाँ से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसके बाद एक्स एक्सिस पे बच्चों आएंगे सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सब्जेक्ट्स और फिर यहाँ पर आएंगे मार्क्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसके मार्क्स। ठीक है, ये क्लियर है, इसी के ही है। ओके, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमें लेना पड़ेगा। तो 75, 62 और इस तरीके से यहाँ पे नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5, 10 से ले लें। 10 हमें बनाने होंगे, या फिर हम इसको देखो यहाँ पे मैं किंक बना रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस करके, यहाँ पे बीच में और भी डेटा होगा। अब इसको 10 10 10 नहीं, 10 से नहीं, मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों आपको 50 से। ठीक है, 50 भी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मैं, ये एक सेकेंड, 45 से। ठीक है, तो ये 45 है, देन 50 है, एक सेकेंड, 40 से ही करते हैं। ठीक है, तो ये 40 है, 50, 60, 70, 80 और ये 90 और ये एक और मैं ऊपर बना देती हूँ, ये हो जाएगा 100। ठीक है, जब बच्चों आपके पास वो ग्राफ पेपर होगा तो आप उसे बहुत अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इसको एक बार आप थोड़ा सा समझ लेंगे और फिर से खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चा सबसे पहले हिंदी का है। हिंदी का कितना 75 मार्क्स है। ठीक है, तो 75 कहाँ होगा, 16, ये 70 और 80 के बीच में होगा, तो ये कहीं यहाँ कहीं आएगा बच्चों सेंटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ तक और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है हिंदी। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला है ये 62 तक, तो 60 से हल्का सा ऊपर होगा बच्चों यहाँ पर कहीं, तो ये कुछ ऐसा 62। ठीक है, तो ये कौन सा है, इंग्लिश है, ENG लिख रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश के लिए। देन मैथ आता है 85, ये बच्चों आपका होगा 80 और 90 के बीच में, तो ये कुछ यहाँ जाएगा। ओके, ये है मैथ्स। देन फिजिक्स में 49, तो ये बच्चों आपका 50 से हल्का सा नीचे होगा। ठीक है, ये कुछ यहाँ होगा, तो यहाँ पे लिख रही हूँ PHY। PHY फिजिक्स। ओके, और लास्ट में दिया केमिस्ट्री 92, तो ये 90 से हल्का सा यहाँ पे ऊपर होगा। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये है केमिस्ट्री। ओके, जब आप इसको ग्राफ पेपर बनाएंगे बच्चों तो अच्छे से इसको ड्रॉ कीजिएगा। ओके, ऐसे ही करना है। ओके, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे ही बन गया। ओके, समझ गए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, एक और इसका कर लेते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन, चलिए ये वाला करते हैं। ठीक है, 6 वाला जिसमें हमें क्वेश्चन रीड करने हैं। ग्राफ पेपर तो आप बनाएंगे। ठीक है, 6 रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ देखो बच्चों, ये रहा पूरा बार ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द अलोंग साइड बार ग्राफ रिप्रेजेंट। तो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर दिया है बच्चों फ्रूट्स है और वाई एक्सिस पर दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो बच्चों ये दिया है हमें एक्स एक्सिस पर फ्रूट्स है, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स फ्रूट्स। ओके, डिफरेंट फ्रूट्स। ओके, तो जो जितना फ्रूट पसंद करता है बच्चों उनके नंबर है। सेकंड क्वेश्चन है, ओवर हाउ मेनी चिल्ड्रन वाज दिस सर्वे कंडक्टेड। मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, वो हमें बताने हैं। ओके, तो सबको हम ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब ये टोटल है, यहाँ पे तो 60 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, है ना, क्योंकि टोटल हमें 60 दिया हुआ है, तो ये 60 हो गई यहाँ पर। फिर थर्ड है, हाउ कैन यू से दैट ग्रेप्स इज द मोस्ट प्रेफर्ड फ्रूट। देखो ग्रेप्स कौन सा, ये वाला है, क्योंकि इसमें 60 स्टूडेंट्स, मतलब सारे के सारे 60 स्टूडेंट्स ग्रेप्स पसंद करते हैं, तो हम लिखेंगे क्या इसमें, क्योंकि इसका बार, या फिर क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स है। ठीक है, सो ऑल 60 स्टूडेंट्स लाइक्स लाइक ग्रेप्स। ठीक है, दैट्स, और आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका बार जो है वो सबसे ज्यादा लेंथ है। ठीक है, ना फोर्थ, विच फ्रूट डू द चिल्ड्रन लाइक द लीस्ट एंड हाउ डू यू नो। तो सबसे कम, मतलब सबसे छोटी लेंथ जो है वो किसके, बनाना की। ओके, तो बनाना ये सबसे लीस्ट पसंद करने वाला। ओके बच्चों, समझ आ गए, तो ये है, और इसकी लेंथ के सबसे छोटी है, दैट्स वाई। क्लियर है। अब इसकी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप करेंगे। आइए इसका एक और हम क्वेश्चन करते हैं।
तो ये लास्ट वाला देखो, 9th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द अबव बार ग्राफ रिप्रेजेंट? बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट है कोर्सेज टेकन अप आफ्टर क्लास 12, ठीक है बच्चों, तो ये कोर्सेज है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने किस किस कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है, जैसे कि इंजीनियरिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कोर्स में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है वो है, ठीक है। सेकंड बोला कि व्हाट विच कोर्स अट्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास 12, बच्चों सबसे ज्यादा किसका है? जर्नलिज्म का, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा जर्नलिज्म। ओके बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जर्नलिज्म, क्लियर है। थर्ड दिया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सर्वे, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स है बच्चों? 80 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 80। अच्छा एक चीज और इसमें, ये यहाँ पे देखो टोटल हमें निकालना है, तो ये देखो यहाँ पे सबका ऐड करना पड़ेगा, ये 60 यहाँ पे है, ये 40 है, ये यहाँ पे 40 नहीं ये 50 है और यहाँ पे, ठीक है, ये जर्नलिज्म में है 80, इन सभी को आपको टोटल करना पड़ेगा। फैशन डिजाइनिंग कितने 40, ठीक है, इन सभी को आप ऐड करेंगे तो आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। बच्चों ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, जो नंबर ऑफ फ्रूट्स वाला था, उसमें भी हमें सबको ही ऐड करना है, तब आएगा यहाँ पे 60 नहीं है, सिर्फ ये 60 नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कॉमन नहीं देख रहे कि किस किस को कौन कौन से और भी पसंद है, नहीं बच्चों, ठीक है, हम सबको अलग अलग इंडिविजुअल बच्चों ऐड करेंगे, ये 30 वाला ऐड करेंगे, ये 50 भी ऐड करेंगे, फिर ये 40 है यहाँ पे, ये 20 है और सबसे लास्ट वाला 60 है, ठीक है, तो सिंपल इसको ऐड करेंगे, जो भी है वो फाइनल आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला है थर्ड में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सर्वे, तो ये तो टोटल आप कर लेंगे। फोर्थ है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन दी स्टूडेंट्स ऑप्टिंग इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, ओके, तो इंजीनियरिंग में कितने बच्चे? 60 है, तो पहले लिखेंगे हम 60 एंड डिवाइडेड बाय मेडिकल, मेडिकल देख रहे हैं यहाँ पे ये 40 है, तो इसको बच्चों हम कट करेंगे तो आ जाएगा 3:2, ठीक है, 3:2 मतलब 3:2 ये रेशियो आ गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्रॉइंग डबल बार ग्राफ। So you have learned how to draw a bar graph. You must have noticed while watching a cricket match or watching a weather report that two bars are drawn side by side to show run scored by two teams or to show temperature in a city of 2 days respectively. Okay बच्चों, तो अब हम एक साथ दो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे वाले हैं, ठीक है, वेदर भी है मतलब टेम्परेचर भी है बच्चों, और साथ साथ में क्या है, ये टू टीम के रन्स भी हैं, ठीक है। So we observe that double bar graphs are shown to drawn to compare the same quantity for two different conditions. Okay. Example है बच्चों 20, the marks out of 50 obtained by Atul, a class 10th student in 5 subjects in 2 pre-board examination are as follows. Okay बच्चों, तो यहाँ पे एग्जाम दिया है, पहले इंग्लिश का है, ओके, इन देखो फर्स्ट प्री बोर्ड में ये है, सेकंड प्री बोर्ड ये है, मतलब यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, इंग्लिश में है, ठीक है, इंग्लिश में उसके फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ उसमें कितने मार्क्स आए उसके 35, फिर कितने आए 40 आए। हिंदी में बच्चों पहले 27 फिर 38, मैथ देखो मैथ्स में 42 देन 45 देन साइंस में 38 देन 30, फिर बच्चों यहाँ पे सोशल साइंस में 45 एंड 30, ठीक है। सो ड्रॉ डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दी अबव डेटा। ओके देखो, सो ये है फॉलोइंग डबल बार ग्राफ शो डिफरेंट इन डिफरेंट शेड्स मार्क्स ऑब्टेन बाय अतुल इन 5 सब्जेक्ट्स इन 2 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस होगी वाई एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस पर है सब्जेक्ट्स और वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ, ये कितने मार्क्स है आउट ऑफ 50, ठीक है, आउट ऑफ 50 है। तो इसमें देख रहे हैं क्योंकि ये टू इन्फॉर्मेशन है तो इनको हमने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स मतलब डिफरेंट कलर से किया है। तो फर्स्ट कलर बच्चों यहाँ पर हो गया प्री बोर्ड और सेकंड मतलब ये कौन सा है, ये थोड़ा सा ग्रे कलर में, और सेकंड जो आप देख रहे हैं पिंक वाला ये है सेकंड प्री बोर्ड का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंग्लिश में जो फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ बच्चों, इसमें कितने मार्क्स आए थे इसके, यहाँ देख सकते हैं ये आए थे बच्चों 35, ओके, तो ये बच्चों 35 तक गया। इसके साथ में हमने अटैच करके ये 40 तक, देख रहे सेकंड वाला कहाँ पे गया बच्चों 40, ये सेकंड प्री बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इसमें हिंदी में देखो, हिंदी में फर्स्ट प्री बोर्ड में आए थे इसके 27, तो 27 तक है, देन आए थे 38, तो बच्चों ये 38 तक है, ठीक है। फिर मैथ में देखो पहले 42 थे, फिर बच्चों यहाँ पे 45 आ गए। साइंस में 38 पहले आए थे, फिर 30 बच्चों और कम हो गए। ऐसे ही बच्चों एसएसटी में देखो यहाँ पे ये 45 पहले थे और 30 और कम हो गया फिर सेकंड प्री बोर्ड में, ठीक है। तो ये डेटा है जो कि एक साथ दो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं 11.6 एक्सरसाइज बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है फॉलोइंग टेबल शोज द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर 5 क्लासेस इन 2008 एंड 2009, ड्रॉ ड्यूल बार ग्राफ टू कंपेयर द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है बच्चों। देखो तो इसमें हमें दिया है ये 4th क्लास 5th 6th 7th और 8th का, ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं डबल बार ग्राफ, ओके।
क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर क्लास, ठीक है, ये क्लास है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और ये एट। एक और बना देती हूँ मैं यहाँ पे, तो ये है एट क्लास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है जी, इसमें दिया हुआ था बच्चों रजिस्ट्रेशन, है ना, तो यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके। तो इसमें हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि 10 से तो नहीं, 50, चलो 10 से कर लेते हैं, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कुछ और ऊपर लेकर जाते हैं इसको, ये 90, 100, 110, 120, 130, ठीक है, 100 ये 30 है। ठीक है, तो ये 110, 120, 130, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में देखो, फोर्थ वाली क्लास में देखते हैं, पहले 2008 में था 45, ठीक है, तो 45 ये इनके बीच में होगा यहाँ पर, ये 45। इसके बाद 2008 में था, 2019 में बच्चों 75 है, तो ये इसके बीच में होगा, ठीक है। तो इससे जस्ट यहाँ पर अटैच करके मैं ऐसे बना रही हूँ, क्लियर। अब मैं शेड कर देती हूँ इसमें, तो ये मैंने कुछ ऐसे शेडिंग कर दिया 2008 वाले में, नहीं 2009 में यहाँ पे लिख देती हूँ, ये खाली होगा और ये वाला यहाँ पे शेडेड होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों 2008 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2009 को, क्लियर है, तो आप समझ जाएंगे। चलिए अब आते हैं फिफ्थ क्लास में, तो ये पहले है 2008 में 85, तो 85 है बच्चों यहाँ पर, ये यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है। इसके बाद ये 2009 में 100 है, ठीक है, तो ये रहा 100, ओके। इसको शेड कर लेते हैं। सिक्स क्लास, पहले 125, तो 125 बच्चों यहाँ पर होगा कहीं, इसके बाद ये 125, 110 है, ठीक है, तो 110 कहीं यहाँ है, ये इसको शेड कर दिया। इसके बाद सेवेंथ वाला, सेवेंथ है बच्चों पहले 130, तो 130 मतलब ये सबसे ऊपर वाला, ठीक है। ओके, और ये 120, तो ये 120 यहाँ पर, इससे नीचे हल्का, ठीक है। और लास्ट है पहले 60, एट वाला पहले 60 है, तो ये कुछ यहाँ पे जाएगा, 2009 का 80 पर, तो ये कुछ यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। जब आप इसे स्केल से बनाएंगे प्रॉपर बार ग्राफ में, ठीक है, उसमें, ठीक है, ग्राफ पेपर में, तो ये आराम से उसमें सही आ जाएगा। तो ये था 80 तक, कुछ यहाँ पे, ओके। इसके बाद ये शेडिंग, समझ गए, तो कुछ ऐसा बनेगा आपका ये डबल बार ग्राफ, ओके। आपको सारा डेटा इसमें बताना पड़ेगा कि आपने कैसे ब्लॉक्स इसमें लिए हैं दो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं, इसमें इसे मैं हटा दूं, ये हो गया। नेक्स्ट इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन है, द डुअल बार ग्राफ गिवन बिलो कंपेयर्स फोर डिफरेंट फेवरेट ड्रिंक्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर
द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस बच्चों यहाँ पे ड्रिंक्स है, टी, कॉफी, जूस एंड मिल्क है, और ये नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। तो ये विच ड्रिंक इज लाइक्ड इक्वली बाय गर्ल्स एंड बोथ। बच्चों इक्वल किस में है, तो ये मिल्क में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मिल्क। सेकेंड है, हाउ मेनी मोर बॉयज लाइक कॉफी देन गर्ल्स। तो कॉफी अगर देखा जाए तो ये देखो बॉयज ये ग्रे वाले हैं और पिंक वाली कौन है, गर्ल्स। ठीक है, तो इसमें बोला हाउ मेनी मोर बॉयज, तो इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं कॉफी में पूछ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने, ये 400 है और यहाँ पर ये है 100। ठीक है, तो ये हम माइनस करेंगे 400 में से 100 को, तो ये आ जाएगा 300। ओके, सो 300 इज योर आंसर। थर्ड है, विच ड्रिंक इज लाइक्ड मोर बाय गर्ल्स देन बॉयज। ओके, सो विच ड्रिंक इज लाइक्ड मोर बाय गर्ल्स। तो गर्ल्स में देख रहे हैं यहाँ पे पिंक वाला ये जूस इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर है जूस। फोर्थ है क्वेश्चन, हाउ मेनी लेस गर्ल्स लाइक टी देन बॉयज। तो टी ये रहा, तो इसको माइनस करेंगे, 300 ये है, 200 ये है। ठीक है, ये 300 एंड दिस इज 200। ओके, माइनस किया यहाँ पे 300 माइनस 200, so दिस इज 100। क्लियर? ओके, ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन ही करने हैं। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ वाला, द ड्यूअल बार ग्राफ शोज। चलिए अब इसे बच्चों आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन 4 है, द ड्यूअल बार ग्राफ शोन बिलो कंपेयर्स द सेल ऑफ 4 आइटम्स इन 2 consecutive weeks. Read the graph carefully and answer the question that follows. First question, the sale of which items has dropped by 50 numbers from week 1 to week 2. ठीक है, तो इसमें देखो 15 नंबर्स पूछा है। ये देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर है बच्चों, यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, आइटम्स है, कैलकुलेटर्स है, लैपटॉप, वॉचेस एंड डीवीडी प्लेयर्स है, और यहाँ पर सेल्स इन नंबर्स है। ठीक है, द सेल ऑफ विच आइटम हैज ड्रॉप्ड बाय 15 नंबर, मतलब ड्रॉप हुआ है, सेल डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीज आप देख रहे हैं किसमें हुआ है, तो यहाँ पर ये देखो पहले ये था, ये वीक 1 और वीक 2 है। ठीक है, तो इसमें देखो डिक्रीज इसमें हुआ है, लैपटॉप में हुआ है। ठीक है, और ये डीवीडी प्लेयर में हुआ है, बट 15 से किसमें डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें तो देखो डिक्रीज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये 5 से डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ये 10 था और ये 5 है। पर इस वाले में चेक कर सकते हैं, ये है 30 और ये वाला कितना है, ये है 15। ठीक है, तो ये देख रहे हैं 30 में से जब आप 15 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 15, इसका मतलब 15 डिक्रीज हुआ है डीवीडी प्लेयर्स में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीवीडी प्लेयर। ओके, सेकेंड है, बाय व्हाट नंबर हैज द सेल ऑफ लैपटॉप्स ड्रॉप्ड सिंस द फर्स्ट वीक। ठीक है, तो लैपटॉप देखो ये रहा, बाय व्हाट नंबर हैज द सेल्स ऑफ लैपटॉप ड्रॉप्ड, तो इसमें हमें बताना है कितने से डिक्रीज हुआ। तो बच्चों यहाँ पे 5 से हुआ है, आप ये 10 माइनस 5 कर देंगे, है ना, तो ये 10 माइनस 5 बच्चों यहाँ पे 5 से हुआ है। ठीक है, तो ये रहा 5। थर्ड है, व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ वॉचेस इन दी फोर्टनाइट। ठीक है बच्चों, सो व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ द वॉचेस यहाँ पे देख रहे हैं, ये रहा, तो इसको हम ऐड करेंगे, ये कितना है यहाँ पे 15 है और ये वाला है 20, तो ये 15 प्लस 20 कितना हो गया 35। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे 35। और फोर्थ है, विच आइटम्स हैव द मैक्सिमम सेल इन दी 2 वीक्स। देखो बोला विच आइटम हैज द मैक्सिमम सेल इन दी 2 वीक्स। ओके, तो इसमें आपको बच्चों सबको ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट वाला देखो, इसमें ये है 20 एंड दिस इज 25, तो ये कितना हो जाएगा 45। इसमें ये 15 है, इसमें देखेंगे तो ये 35 है, इसमें ये 30, 40, 45 है। ठीक है, तो किसमें हुआ बच्चों सबसे ज्यादा मैक्सिमम हुआ है कैलकुलेटर्स और डीवीडी प्लेयर्स में। ठीक है, सो विच आइटम लिखेंगे इसमें, कैलकुलेटर एंड डीवीडी प्लेयर्स। ठीक है, क्लियर है, तो ये ऐसे हमें इक्वेशंस करने हैं। ओके, चलिए बस ये था हमारा चैप्टर। आगे बच्चों आपके कुछ एमसीक्यूज है, तो ये आप ट्राई करेंगे, और फिर क्रैक द कोड है, ब्रेन ट्विस्टर है, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको खुद से करने। ठीक है, सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है ना। अब हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में द न्यू चैप्टर, सो टिल देन प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चन। ओके, सो टेक केयर, बाय।